Welcome you all to one more new panel discussion. The topic is old, but it's still very important. It was important, it is, and will always be. Yes, health. There is a saying, health is wealth. Why do we call it as wealth? Let's discuss that. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's panel discussion on the timeless and the powerful topic. In a world where success is often measured by financial growth, your status, your material positions, we always sometimes overlook the most valuable asset we truly have own is our health. Without physical strength, mental clarity, and emotional balance, no amount of wealth can bring this lasting happiness or fulfillment. So, today we will explore health not just as the absence of disease, but as a complete state of physical, mental, emotional, and even social well being. Especially in today's fast life in this digital area, AI, where stress, sedentary lifestyles, and all other lifestyle disorders are rising very high. So this topic becomes more relevant than ever. We have panelists with us who will share their insights on the importance of this preventive healthcare, lifestyle changes, choices, and daily habits mental and emotional well-being. So the balance between career success and personal wellness. So let us engage in this meaningful conversation with open mind, practical intention, because investing in health is the greatest return on investment we can receive. Thank you, and let us begin. So today with us we have Lipi Bhalla, Harpreet Kaur, and Anju Grover. Welcome you all. Thank you. So my first question is do you justify this saying, health is wealth? Harpreet, you can start and let us know about your this on it. Thank you, Jyoti. Welcome everyone on this our healing touch words. Health is wealth. Everybody knows, we know from the beginning when our elder people used to say, no amount of wealth can save your health. But yes, if you're healthy, you will enjoy your wealth till the end. Wealth lost, you don't lose anything. Health lost, you everything. What you will do with the wealth? You have millions in the bank, but you cannot enjoy fruit of that wealth. Your great grandkids are going to enjoy till the like later on. So we have to focus on our health, and then wealth will be there. Health is not only physical health, it is emotional health, social health, how we act. Every time of stress, what we are taking in our day-to-day life is health, affecting our health. And first we save the health, then we make the insurance, big fat insurance, then we pay to the doctors, and then we are left with what? Medicines, pills, and pills and pills. So I feel health is real wealth. Right, Anjali? And Lipiji, I would like you to tell us more about the health is wealth. What is your concept on it? Thank you, ma'am. Thank you so much for this concept, introducing this concept, which is actually very much required. A, because people underestimate this topic, and B, as exams are going to start, this message should reach every home, especially where kids are there, those who are going to appear for so many exams. So see, if health is wealth, we need to first understand what health brings to us. हमारे पास health लेके क्या आती है? अगर हम हेल्दी हैं तो वी इंक्रीज आर प्रोडक्टिविटी, हमारा फोकस इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प आर किड्स. अगर छोटे दायरे से देखें तो किड्स, अल्टीमेटली अगर घर में बुजुर्ग भी हैं तो उनका हेल्थ है तो प्रोडक्टिविटी, फोकस सब इंक्रीज होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका मेंटल हेल्थ है, इफ यू आर मेंटली पीसफुल एंड यू आर साउंडफुल, that means you are going to bring good results not only in your exams but आपके करियर में, आपके जॉब में. सो अगर हेल्थ को हम एक छोटे से पैमाने में ही रखेंगे कि दैट हेल्थ इज जस्ट टेकिंग फूड एंड दैट्स इट, नो, हेल्थ इज अबाउट मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग. जैसे हरिप्रीत मैम ने कहा कि wealth can bring comforts in your life.
लेकिन अगर आप हेल्दी होंगे तो यू कैन एंजॉय दैट कंफर्ट। सो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट और स्पेक्ट्रम में अगर हम हेल्थ को देखने की कोशिश करें तो हेल्थ, लोगों ने सिर्फ वेल्थ को ये समझा है कि एक मनी है, वी हैव टू अर्न मनी, दैट्स इट। लेकिन मनी सिर्फ एक उसका आउटकम है। आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारा वेल्थ है, जैसे मैम ने कहा, अगर हेल्थ ही नहीं है तो वो वेल्थ कहाँ जाएगी? पिल्स एंड बिल्स में, दैट्स इट। सो हेल्थ ऑलवेज कम बिफोर वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग टर्म सक्सेस। लेकिन अगर आप हेल्थी नहीं है, आपके पास वेल्थ पहले आ गई है, तो वो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो है वो कट कट के आएगा। आपको स्पीड ब्रेकर्स आएंगे जहां पे आपकी वेल्थ जो है कहीं ना कहीं जाती जरूर रहेगी। So this is what in my opinion, ki health is wealth. I totally resonate. I totally justify this. And if our viewers are there who are listening to us, उनको भी ऐसा लगता है तो please comment कीजिए that yes, health is wealth. मुझे So याद this है तुमने ये भी एक बार तुम्हारे इंटरव्यू जो हमने लिया था तब उसने कहा था कि तुमने ये लाइफ का सेइंग ही बना के रखा है कि मुझे भूलना नहीं है ये कि हेल्थ इज वेल्थ। उसको इतना हाईलाइट करके रखा है तुमने कि लाइफ की मेरी प्रायोरिटी है। और तुमने ये इस पे लाइक कि मुझे सिर्फ अपने नहीं, अपने आसपास के लोगों को, जिनको भी मैं ये मैसेज पहुंचा सकूं, मैं कर सकूं, बिकॉज यू हैड गॉन थ्रू दैट hardship Yes, which I made have you gone through. realize this saying. मेरे को गॉड ने बहुत डीप जाके इस चीज का रियलाइजेशन दिया है दैट हाउ हेल्थ इज इम्पोर्टेंट एंड मोर देन एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। और जैसे जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी और टैरो और एनर्जी वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व किया, आई कम अक्रॉस दैट हेल्थ, हमें सिर्फ हम हेल्थ को सिर्फ एक नंबर या मतलब सिर्फ एक सेइंग की तरह लेते हैं। अदरवाइज हेल्थ इज सो मच डीप की इफ आई गो इनटू इट तो ये टॉपिक ही बहुत गहरा है, इसकी बहुत गहराइयां हैं, बहुत ब्रांचेस हैं, जैसे लोग समझते ही नहीं है। वो हेल्थ को सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ में देखते हैं, बट इसकी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आज के टाइम में बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल ये बहुत जरूरी हो गया है टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल। Yes, this is very true. Thank you, Lippy, for telling about this. As being a teacher, I am also getting through this all the concept कि आजकल बच्चे even they are physically fit, still they are taking too much stress, especially during exams, that they can't even perform well. कल एग्जाम्स में ही, जैसे बोर्ड का कल एग्जाम हुआ, तो वी गो टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट कि एक बच्चे को वहां पे बैठे हुए ही पैनिक अटैक आ गया। Either she was healthy, but half an hour she wasted just because of this ill mental health. So Yes. only physical health is not okay. Mental health is also very important in our life. So as you are talking about energy health and all these things, can you please put your views on this holistic approach of health? See, So जैसे like we all know about investments, mutual investment, SIP, FDs, हम ये सारी चीजें सुनते आए हैं, and we put an effort, we do it. In fact, when your child is born, you immediately start and educational policy बना के रखते हो, जाके 18 साल का बच्चा हो जाए तो like he is getting everything. So when you're making so much investment, why are you making those investment? To have a better life, to give a good life to yourself, to your family, टू फुलफिल योर डिजायर्स कि ठीक है अभी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कमा लेते हैं, अच्छी गाड़ी एक बंगला खरीद लेंगे. सो you are doing it for all these desires. Same thing, you have to put that same effort with your health also. हेल्थ के लिए भी वैसे ही स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने हैं. वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारा टाइम का है, तुम्हारा स्पेस का है, गिविंग इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ, कि समझना है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी उतना ही टाइम और स्पेस और एनर्जी देनी है हमें. हम बचपन से अगर इस चीज की शुरुआत करते हैं तो आगे जाके और चीजें फिर बेनिफिट देती हैं. और अभी भी अगर आपने नहीं किया तो अभी भी लेट नहीं हुआ है. इन्वेस्टमेंट अभी भी शुरू कर सकते हैं, अभी भी प्रॉफिट्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में कि कैसे हम लोग छोटी छोटी चीजों से भी लाइफ को कैसे हेल्दी और काफी हेल्पफुल बना सकते हैं. एक रूटीन बना लें, डिसिप्लिन लाएं लाइफ में, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और स्पेस में हमारे लाइफ में डालें,
तो कैसे चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारे पास है ये काफी तरीके जिनसे हम ये कर सकते हैं। एंड जैसे अंजू जी ने भी कहा कि बचपन में ही बच्चों को ये चीजें डालनी है। कहीं पे हम लोग कई बार ऐसे होते पेरेंट्स के ही स्ट्रेस बच्चों पे चले जाते हैं। बच्चे शायद स्ट्रेसफुल नहीं हो लेकिन पेरेंट्स के स्ट्रेस हो जाते Very true. These days, na, parents are putting more stress actually. हैं। या तो वो हो रहा है। एंड कहीं कहीं बच्चे के ऑलरेडी स्ट्रेस है, उनके अपने स्ट्रेस है, एक पीयर प्रेशर है, पीयर स्ट्रेस है। टीचर ने क्या बोला है नेक्स्ट, मेरे को ये करना है, मुझे ये इतना मार्क्स लाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ऑलरेडी उन्होंने अपना एक तो बनाया है बाउंड्री, फिर एक पेरेंट्स का भी ऐड हो जाता है। तो इसीलिए और आजकल अभी निकली है थेरेपीज के एग्जाम के पहले कैसे करना, लेकिन हम पहले से ही कुछ हैबिट बना लें अपनी और बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होती है। लाइक कुछ हॉबीज में डालना है, कुछ सिंपल सिंपल बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चों को डाल सकते हैं। लाइक मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मैं बचपन में, चलो डांस सीखने का शौक था, मैंने डांस करती थी। तो मैं क्लासिकल डांसर हूँ, मैं डांस करती रही काफी सालों से। एनसीसी में मुझे डाला गया, तब मुझे लग रहा था ये क्या है, एनसीसी में इतने टफ चीजें कराते हैं, ये होता है। बट मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में ये रियलाइज हुआ कि मुझे जितने हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं वो मेरे एज ग्रुप के उतने लोगों को उतना नहीं मिला है। जो जो एज में मेरे उन लोग को प्रॉब्लम जल्दी आने शुरू की, उन लोग ने, मेरी हेल्थ ने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि जब डांस करते हैं तब उसमें आपकी फिजिकल मेंटल सारी एरियाज यूज होती हैं, खास करके जो भरतनाट्यम मैंने सीखा है। तो वो तुम्हारे बॉडी के मसल्स को, तुम्हारे मूवमेंट से, तुम्हारे बाकी आईज को और बाकी सारे मतलब मेंटल लेवल पे भी तुमको रिलैक्स करती हैं। तो ये सारी चीजें हेल्प करती थी, मुझे अननोइंगली करती थी। और टफ भी बनाती थी कि ठीक है प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, वो भी सीखा। तो डरना नहीं है, ठीक है प्रॉब्लम आया तो ठीक है, आया तो आया। ऑफ कोर्स यू नीड फैमिली सपोर्ट आल्सो फॉर ऑल दिस, बट ये चीजें काफी हेल्प करती हैं अगर आप बचपन से ही इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करें। ये आप कुछ बोलना चाहती हैं? जो अभी आपने बोला फैमिली सपोर्ट, अगर दिल खोल लेते अपनों के आगे, नहीं खुलता ऑपरेशन थिएटर पे, राइट? क्योंकि आजकल हमारा जो एनवायरनमेंट हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज, साथ में कोई है नहीं, दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, फोन है, फोन में अभी फोन पे नहीं करते, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया चलो जी हो गया। पहले होता था बच्चे नीचे खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, दौड़ते थे, अपना सारा दिन वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे, मदर्स उनके साथ जाती थी। अभी सारा दिन आप कंप्यूटर पे लगे हैं, वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और यू आर वर्किंग इन ऑफिस, full day you are sitting in front of computer, a laptop, you are using it, you are going back home, you are checking your social media, you are doing your social media, अपनी social service कह लो कि अपना वो करते हो, but where is time for yourself? You don't have the time to do the 5 minutes deep breathing also. टाइम ही नहीं है, एक ही चीज है, टाइम ही नहीं है। प्रेशर से है, प्रेशर फिर आपकी बॉडी में दिखता है, आपका स्ट्रेस, आपके हेडेक, माइग्रेन ब्रेन्स में आता है। जो स्ट्रेस है आपका, इमोशनल स्ट्रेस आ गया, वरी है, प्रेशर है, फियर ऑफ फ्यूचर है। सबसे बड़ा हम पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर एक नई टेंशन आ जाती है, हमारा पैसा कोई ले ना जाए, हमारे टेंशन, घर ले लिया या कहीं बिल्डर भागना चाहे, ये घर ले लिया, अब इसमें फर्नीचर आ गया, गोल्ड बना लिया, आजकल के लॉकर्स में से गोल्ड चोरी हो रहा है। पैदा क्या उस पैसे को जोड़ने का, इससे अच्छा तो घूमो फिरो, फैमिली के साथ जाओ, टाइम ही नहीं है। इमोशनल इतना हम मतलब खराब हो चुका है सिनेरियो दीस डेज, वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, वी हैव द लग्जरी ऑफ वेल्थ। उसके बाद आपका जैसे आ जाता है, आई एम डूइंग द EFT, दैट इज द टैपिंग सोल्यूशन है। आपके जैसे इमोशनल है, वेल्थ रिलेटेड ब्लॉकेज आ चुके हैं, हमें इतना डरा दिया गया है। एक और भी चीज है, हम वेल्थ को लेके क्यों इतने इंसिक्योर हैं? बचपन से हमें बोला जाता है जितना रजाई है उतने पैर, चद्दर है उतने पैर पसारो, यार चद्दर बड़ी कर लो, ठीक है। उसके बाद है पेड़ों पे पैसे नहीं उगते, क्यों नहीं उगते? तो खेती कर लो, पेड़ों पे पैसे उगने शुरू हो जाएंगे। और मतलब अपना लिमिटेड बिलीफ्स जो है, उससे हमें इतना फियर डाल दिया गया है कि हमारे इतनी बीमारियां आ गई हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ, वाई वी नीड साइकोलॉजिस्ट। छोटे छोटे बच्चे चले होते हैं जी, इनको डिप्रेशन आ गया। हमारे जमाने में कोई डिप्रेशन था? कोई बच्चा अपने माँ बाप को बोलते जी मैं डिप्रेशन हूँ, एक थप्पड़ पड़ती, सारा डिप्रेशन बाहर। टाइम ही नहीं था डिप्रेशन के लिए, डी भी नहीं पता था, सिर दर्द नहीं कभी हुई थी। अभी छोटे छोटे 5th स्टैंडर्ड अभी कंपटीशन भी काफी आ चुका है ना, हम उस चीजों से भाग नहीं सकते जो ऑलरेडी चल रहे हैं, हमें उन्हीं में ही अभी रास्ते ढूंढने हैं। उनको बच्चों को
आपने इतना ज्यादा इंग्रॉस कर दिया, जैसे लिपि जी अंशु जी ने बोला कि बच्चे खेलने तक नहीं आते, ठीक है, उनको टाइम दो कि भाई तुमने पढ़ना है, लैपटॉप इसको मोबाइल को छोड़ो साइड पे, कुछ एक्टिविटी करो, कुछ भी करो बट करो, अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स एंड योर मोबाइल। ड्राइंग करो, सिंगिंग करो, कुछ भी जंपिंग करो, कुछ तो करो। जो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, मेड्स के पास बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जंक फूड की बहुत ज्यादा हो गया, बच्चा गुस्से हो गया, चल बेटा कोई नहीं ऑर्डर कर दे। तो ये चीजें हेल्थ पे अफेक्ट होनी है बाद में जाके। फिर आजकल यंग यंग बच्चों में हार्ट की बीमारियां आ रही हैं, न्यूरो की बीमारियां आ रही हैं, बच्चे अपने आप से फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। कल को हमने बोलना कि हमारा बच्चा हमें नहीं पूछा, कैसे पूछेगा यार? टुडे वी डोंट हैव द टाइम फॉर दैट किड, we are scoring the we're making the huge investment for that child, we are not making the investment in the relationship. So I wish everybody कि हाँ accumulate करो, बहुत करो, but same time give the importance to your family, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, और वाइफ अपने हस्बैंड और बच्चों को थोड़ा सा टाइम भी दो कि भैया अपना चेकअप कराओ। लेडीज हैं हेल्थ के लिए, ठीक है यार, सबकी फैमिली की होगी, मेरी छोड़ दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, सबकी हो जाती है। कोई प्रोटीन नहीं लेता डाइट में, क्योंकि नहीं बहुत महंगा है, बच्चों को पढ़ाना है। जब तुम ही नहीं रहोगे तो उस चीज का क्या फायदा कि अगर यू आर नॉट देयर टू एंजॉय हैप्पीनेस ऑफ योर चाइल्ड। सो पहले अपनी हेल्थ, तब उनकी वेल्थ बनेगी। यू आर देयर वेल्थ एज दे आर योर वेल्थ। वेल्थ हमेशा पैसा नहीं होता, वेल्थ रिलेशन भी होते हैं। सो वी हैव टू ग्रो दैट ऑल्सो, वी हैव टू लर्न टू बी हैप्पी। स्ट्रेस तो आता जाता रहता है, स्ट्रेस को छोड़ो और बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू दिस हैव। इज एक्चुअली अ न्यू टर्म, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये जो वर्ड्स हैं बच्चों की डिक्शनरी में डाले गए हैं। ये एक्चुअली दीज वर्ड्स वर नॉट देयर इन आवर डिक्शनरी। हमें नाउ Very true, एवरीबडी इज very true. यूजिंग, दे आर हैविंग इन देयर डिक्शनरी दिस वर्ड। पहले कौन यूज करता था? हम बच्चों ने तो कभी ये वर्ड सुने भी नहीं थे। क्योंकि नाउ एवरीबडी इज हैविंग दिस वर्ड। हमें इम्पॉसिबल का मतलब नहीं पता था, हम सोचते थे सब कुछ कर सकते हैं, या कुछ नहीं होता, देख लेंगे। सोशल Yes, we मीडिया used है to ठीक, say the word impossible itself says that आई I एम am पॉसिबल, possible. या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। This was the saying our English teacher used to teach us, and every हाँ, time we also used to use this sentence: "I am possible. I am possible. I Everything am is possible, possible." yeah, that's true. Because see, with this growing social media, हमें नुकसान भी है, फायदे भी हैं. So I think we should focus on, like, whatever benefits we are Yeah, getting with positives. social Yes. media. We are getting to connect, we are getting to learn how to improve our life. कि जैसे मोबाइल में घुसना है तो उतना घुसना जितना रिक्वायर्ड है। जैसे अभी जैसे लिपि ने बोला कि बच्चे का, तो वो मुझे सडनली एक एग्जांपल याद आया। मेरी फ्रेंड ने बोल रही थी कि मैं हैरान थी, मेरे बच्चे, इतना छोटा बच्चा है लेकिन उसको इतना बड़ा चश्मा लग गया, ये हो गया। मैं डॉक्टर को पूछी क्यों ऐसे मेरे बेटे के साथ हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बेटे के साथ क्यों हुआ। तो उसने बोला कि वो उसकी एक्टिविटीज के बारे में पूछा, उसने डेली एक्टिविटीज के बारे में। तो उसने बोला नहीं, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, फिर उसके बाद बैठती है, अपना करती है एक्टिविटीज, फिर थोड़ा देर मोबाइल पे बैठती, दिन निकल गया उसका। तो उसने बोला वेर इज शी सीइंग द कलर्स ऑफ लाइफ। इन्हीं आंखों से तो हम दुनिया को देख रहे हैं। एक हमारा एक्सपांशन होता है विजन का, आपने उसका विजन पूरा ब्लॉक कर दिया। स्कूल में जा रही है, स्कूल की एरिया में थी वो, इतनी सी, उतने में ही है उसका विजन, इधर भी इतना ही उसका, घर के अंदर है इतना विजन, तो उसका विजन एक्सपांड नहीं हो रहा है। वो ग्रीनरी से कनेक्ट नहीं हो रही है, वो नेचर से कनेक्ट नहीं हो रही है, वो एक्सपांशन नहीं देख रही है कि बाहर जाएगी खुले में तो इतनी बड़ी एरिया उसको दिखेगी, तो उसका विजन अच्छा होएगा। एंड फिर उसने उसको एक्सरसाइजेस भी बताया और उसको करना शुरू किया उसने। तो बोले मैंने रियलाइज ही नहीं किया ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। तो मतलब कितनी सिंपल चीजें हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता है कि सिंपल ग्राउंडिंग करना है, नेचर से कनेक्ट करना है, थोड़ा सा सिर्फ। अगर नहीं है टाइम, बिजी है लाइफ, हम सब समझते हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे डालना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ करो एंजॉय, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट अपने आप को दो। मॉर्निंग 10 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट। मैं यही बोलती हूँ कि अपना ऑरा क्लेंजिंग करो। कुछ नहीं आता तो सिंपल वो टेक्निक करो, कॉर्ड कटिंग का सीखो, योगा सीखो, और योगा भी पूरा नहीं करना तो चलो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो उठते ही मॉर्निंग में, कुछ Can you सिंपल please, प्राणायाम Jyoti सीख ji, लो। sorry, can you please explain how we can clean our aura?
और कि मैंने मेरा एक Dissociating. फुल कोर्स मैंने YouTube में फ्री डाला हुआ है, like Okay. I have mentioned all different ways you can understand also your aura and how you can clean your aura. But एक सिंपल मैं बहुत बेसिक बता भी देती हूँ इधर अपने ऑडियंस के लिए है कि जैसे लाइक यू नो कि हमारा ऑरा हमारे 7 लेयर्स की तरह हमारा ऑरा भी 7 लेयर्स में है, ठीक है। तो आप उसको डेली अगर रूटीनली सिर्फ थोड़ा और कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे करके भी अपने ऑरा को आप क्लेंस कर सकते हो, लाइक यू नो विद ये ऐसे ऐसे करके अपने पूरा एक ऑरा को क्लेंस करोगे, जैसे तुम अब कोम करते हो वैसे कोम करके अपने एक ऑरा को क्लीन करते हो। तो डेली एक हैबिट बना लो। और जो हम लोग डस्टिंग करते हैं, जो काफी कुछ रिचुअल्स है हमारे लाइफ में है ना, जो रिचुअल्स बनाए हुए हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी ने जो बनाए हैं, उनके कुछ ना कुछ फायदे ये हैं कि हम उन चीजों से मतलब क्या है जो स्टैग्नेंसी है और जो हम लोग जो थॉट प्रोसेस है उन सबकी एनर्जीज कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। अच्छी एनर्जीज है तो ठीक है हम ले लेंगे, फायदा है, लेकिन बुरी एनर्जीज हम क्यों लें, है ना। उनको हमको निकालना है क्योंकि वो हमारे और कोई भी चीज हमारे ऑरा पे पहले अफेक्ट होती है और बाकी बाद में लेयर्स पे जाती है। तो उसको अगर हम क्लीन कर लेते हैं तो यू नो improving your health in faster before it is coming to you also। तो क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों की एनर्जीज होती हैं, अलग अलग कोई आपसे किसी की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है नहीं होती है, तो वैसे हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये है। फिर होता है चक्रा बैलेंसिंग होते हैं कि लाइक ना हमारे 7 चक्रास हैं, आप उनको बैलेंस करो, अंडरस्टैंड विच चक्रा इज योर इम्बैलेंस, तो उस पर थोड़ा वर्क कीजिए आप, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने ना जितनी सिंपल चीजें हो सकती है वो मैंने ट्राई की हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो है ये काफी सिंपल सिंपल चीजें जो कर सकते हैं। लिपि भी काफी एनर्जी के सेशंस लेती हैं अलग अलग, तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लिपि जी तुम्हें किन्हें बताती हो उनके बारे में? जैसे कि अंजू जी ने पूछा कि ऑरा को क्लीन करने का कोई एक आसान तरीका बताएं, लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपने ऑरा को समझो कि ऑरा बनता किससे है। ऑरा 2 चीजों से बनता है, एक यिन एनर्जी और एक यांग एनर्जी। सिंपल सी बात है, ये दोनों एनर्जीज आप में होगी तो आपका ऑरा स्ट्रेंथन भी होगा, बैलेंसिंग भी होगा और क्लीनिंग भी होगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यिन एंड यांग कहाँ से आएगी। ये आती है जब आप अपने आप को ग्राउंड करते हो। ग्राउंड मीन्स नंगे पैरी चलना, मिट्टी में अपने आप को इन्वॉल्व करना, फिर वो चाहे आप प्लांट्स ग्रो करो या फिर नंगे पांव चलो या फिर खूब सारा पानी पियो, ये आपको ग्राउंड करेगा। और यांग कहाँ से आएगी? एनवायरमेंट से। जितना एनवायरमेंट में सनलाइट में जाओगे, ये दोनों एनर्जीज जैसे ही कंबाइन होना शुरू हो जाएंगी, आपका ऑरा वैसे ही परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इससे आसान तरीका हम आपको क्या बताएं। अब ये टाइम अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी आप दिन में निकाल लो, नंगे पांव चलो और गार्डन में चलो, आपकी यिन एंड yang दोनों पूरी हो रही हैं। लेकिन वहीं अगर हम सारा दिन ऑफिस में हैं, सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक, और शाम को 5 बजे घर आ गए, तो खाए हमने कुछ स्नैक्स खाए और लगे हैं टीवी और मोबाइल पे, आपने या यिन को देखा ना yang को, और फिर आप कह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं और हमारा ये हो गया, हमें नेगेटिव वाइब्स बहुत मिल रही हैं, हमें इलनेसेस आ रही हैं एंड व्हाट नॉट, आजकल की फेमस लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, डिस्कम्फर्ट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल कम। इतना ही समझ ले पहले हमारी ऑडियंस की ऑरा इन जर्नल और ले मैन लैंग्वेज में क्या है, तो थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉर देम। तो हमारी जो जैसे मैम ने कहा कि एनर्जी एक्सरसाइज में, अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हम ग्राउंडिंग अगर अपनी बॉडी की कर सकते हैं। लेट सपोज आपको नहीं टाइम मिल रहा, आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे ग्राउंडिंग पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, तो अगर आप यहाँ पे टैप भी करोगे ना, तो योर बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग ग्राउंड। अब ये नहीं कि आपने एक बार हफ्ते में कर लिया और आपको लगेगा कि पूरा हफ्ता ग्राउंडेड हो गई, ऐसा भी नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी भी देखनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप इतना छोटा सा स्टेप कर रहे हो तो मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा और फिर डेली भी करना पड़ेगा। तो एक सिंपल स्टेप तो हमने बता दिया, लेकिन अब डिपेंड करता है आप कितने कंसिस्टेंसी उसको फॉलो कर रहे हो और कितने टाइम में कर रहे हो, गैप कितना है आपका, एक ब्रिज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो एनर्जी एक्सरसाइज बेसिकली इन्हीं सारी एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप ऑरा, चक्रा, आपकी इम्यूनिटी, वाइटैलिटी, ये सब इंक्रीज करते हो, जिसमें सिर्फ आपकी जरूरत होती है। हम किसी और चीज को नहीं चाहते कि आप लेके आओ, सिर्फ आप आओ। अभी रिसेंटली मैंने 7 डेज चक्रा ये एनर्जी एक्सरसाइज का केयर का
चैलेंज किया था फॉर 7 days, बहुत सारे लोगों को रिलैक्स फील हुआ, उनको एनर्जीज फील हुई। सो ऐसे चैलेंजेस हम करते रहते हैं। इट्स जस्ट कि आप अगर चाहते हो वैसे चैलेंज में आना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और हम अपना वो चैलेंज रिवाइज कर सकते हैं आप सबके लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। तो do comment in the below the video if you really want to have energy care challenge, 7 days energy care challenge, so we can go ahead with again. अभी मैंने recently off किया है, we will go again for that. Yes. Good. That Thank is you, really Lipi ji. nice. So we have many healing sessions which we keep having it. So you can connect to us and you it's like एक तो जैसे हमने कहा कि डेली रूटीन बनाओ, कुछ भी करो, योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, मंत्रा चैंटिंग करो, और क्लेंजिंग, एनर्जी चक्रा बैलेंसिंग। दूसरे जो है जो हमारे लेकिन इन सब के अलावा कुछ चीजें जरूरी हैं आपको, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल, के हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 3 महीने में, इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल। ये जरूर करना है कि जो हमारे ब्लॉक्स रहते हैं ना कहीं अंदर अटके हुए रहते हैं, उनको निकालना जरूरी है। तो वो एक प्रॉपर कोई ना कोई एक थेरेपिस्ट से आप ये कराएं सेशंस, लाइक होपोनो होगा, ईएफटी हो गया, जैसे इन्होंने बोला 7 days का एनर्जी। वैसे कोई ना कोई एक चीज जब आप करते हो तो आपके जो ब्लॉक्स है ना वो सारे रिलीज होते हैं, उससे काफी फर्क पड़ता है। ईएफटी के बारे में तो हरप्रीत जी भी बता सकती हैं क्योंकि वो लेती हैं सेशंस। तो ईएफटी के बारे में आप बताइए लोगों को। कि ईएफटी से ये नहीं है कि हम शुरू कर देते हैं आते ही ओके आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, मनी इज कमिंग टू मी वेरी इजीली। नहीं, पहले हम देखते हैं कि आप कहाँ स्टक हो। कई बार हम क्या बचपन की किसी चीज में स्टक है, ब्लॉकेज चल रही है, हमारा लिमिटेड बिलीव्स है, हमारा ओपन नहीं कर पाते हम, वी आर नॉट ओपन टू रिसीव इट। हमारे ब्लॉकेज है हेल्थ को लेके, इमोशंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके। कभी क्या होता है कि बचपन में आपके साथ कोई चीज हुई है विच यू आर नॉट एबल टू टेल टू वेरी क्लोज टू यू पीपल ऑल्सो, कि कोई ऐसे ट्रॉमा हो गया, स्कूल में हो गया, घर में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, तो उसको आप ईएफटी से टोटली रिमूव कर सकते हो। वो हम ईएफटी करवाते हैं बिकॉज वी हैव द 8 पॉइंट्स एंड उसमें 72,000 वेन्स है जो कनेक्टेड है। टैपिंग है, सिंपल टैपिंग करते हैं। उसको पहले हम उसकी एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये नहीं है कि हमने पैसा घुमा दिया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। पहले आपको प्रॉब्लम समझनी है, उसको एक्सेप्ट करना है, फिर उसका सोल्यूशन आता है। आपका रिलेशनशिप का इश्यू है, ग्रुप में मैंने देखा है कि लोगों की डिवोर्स के लिए फाइल किया हुआ, दे आर टुगेदर एंड दे आर हैविंग द बेबीज नाउ। न्यूमरोलॉजी की है, वास्तु किया है, ईएफटी के साथ आई कैन टेल द वास्तु टिप्स आल्सो कि घर में भैया ये चेंज कर लो तो थोड़ा और फर्क पड़ जाएगा। ईएफटी में आपके हेल्थ को लेके, फ्रोजन शोल्डर है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, हिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, वेरिकोज वेन्स है, एक एक चीज को पॉइंट आउट करके आप सॉल्व कर सकते हो। एडिक्शन उसमें निकल जाती है क्योंकि एडिक्शन वाला इमोशनली कोई ना कोई उसके साथ हुआ है जो वो उसको छोड़ नहीं पाता है, तो उसको हम पहले वो एक्सेप्ट करेगा। फिर टैपिंग के थ्रू सेशन होंगे, 3 to 4 सेशन में उसको चेंजेस नजर आएंगे। हाँ, एक दिन आप कर लो कि हाँ जी हमने कर लिया, मैं रिलीज हो गया, सब कुछ रिलीज हो गया, बल्ले बल्ले आई एम गुड, नहीं। do the practice, stick to your person who is doing it for you, stick with that person। उससे पूछो, वापस उसमें जा रहे हो, वापस गो टू हिम। डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी हुई है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की मेडिसिन, 3 months लो, ठीक है ले लीजिए। अब डॉक्टर के पास क्या जाना, अब तो मैं ठीक हूँ। हाफ कोर्सेज हम छोड़ते हैं, हाफ रिचुअल्स हम छोड़ते हैं। जैसे लिपि जी ने बोला कि हाँ जी ग्राउंडेड करो, एक दिन तो चल दिए, आज मैं ग्राउंड में जाके 15 चक्कर लगा लिया, हम गुड। कल तो फिर आप नेगेटिविटी में आ गए ना। डेली करना है, 5 मिनट करो, डेली करना है। वॉक करते हैं, जूते पहन के करते हैं, जो आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे धरती से। गार्डन में जाओ, ग्रीन ग्रास पे चलो, आंखें भी तेज होंगी, पैरों में भी थोड़ा ठीक मिट्टी से जुड़ेंगे, ग्राउंडिंग भी हो रही है, और सूर्य जी आपको विटामिन डी की गोलियों की जगह वो भी देंगे। हाँ, ये नहीं कि 1 बजे सूरज में चल रहे हो और गिर रहे हो वहां पर, नहीं। चलो सुबह 7 to 8, पर 7 to 8 उठे कौन? क्वेश्चन तो ये है ना कि 7 to 8 उठे कौन? रात को 3 बजे तो सोने गए हैं। लाइफ स्टाइल चेंज इज द फर्स्ट थिंग, डाइट इज चेंजिंग द फर्स्ट थिंग। आपको हैवी खाना नहीं खाना, 7 बजे से पहले खाना बंद करो। पानी का इंटेक ज्यादा करो, जो हम लोग go for the all the drinks, Pepsi, Cola and all, stop that, start drinking लस्सी, छाछ। पंजाब में तो लस्सी, बाकी जगह छाछ पियो, दही खाओ। खाने से पहले अपनी ईयरली
वीकली मंथली जो भी हेल्थ का कुछ है उसको टेक वेरी सीरियसली। पता नहीं चलता आजकल चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ठीक है, उनका बाद में इंश्योरेंस खाने से अच्छा है कि उनकी टेक केयर कर दो। ठीक है, अरे मतलब पता चल गया कि 1 करोड़ का कवर मिल गया पर बंदा तो चले गया ना। बेटर है चेक दैट पर्सन हेल्थ ऑल्सो। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एवरी फैमिली एवरी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी टेक केयर ऑफ अवर फैमिली मेंबर ऑल्सो कि ये कितना स्ट्रेस लेके बैठा हुआ है, हम हैंडल नहीं कर सकते। वी हैव टू गो एंड टॉक टू समबडी। कई बार हम अपने आप फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बट हम दूसरे के आगे खुल जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, एडिक्शन है, आई हैव स्टार्टेड एक्टिव, प्लीज कम टू मी, आई विल डू द फ्री सेशन एंड स्टार्टिंग। आपको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, देन यू गो फॉर द फर्दर। तो चल ही रही है, कौन चेंज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो व्यूअर्स जी इसका फायदा उठा लीजिए। हरप्रीत जी यहाँ पे आपको मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि हमारी जनता को या लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको ये बहुत फील होता है कि हीलिंग का मतलब हो गया एक एक लीनियर चीज, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज। लेकिन हीलिंग जो होती है वो कभी भी लीनियर नहीं होती है, वो रिदम्स में होती है, जिसमें कभी भी वेव्स हाई भी जाते हैं और लो भी आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हीलिंग नहीं हो रही है या आप फेल हो रहे हो। हाँ, नहीं, इसका मतलब आपकी बॉडी अब उस चीज को इंटीग्रेट कर रही है, वो आपको साइंस दे रही है, चाहे लो होकर, चाहे रो कर, चाहे सो कर, या जो भी वे उसको फील आपकी बॉडी को, बिकॉज एवरी वन इज यूनिक। तो ये भी क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है कि अगर आप कहते हो कि मैं हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने हीलिंग भी करवाई, मैं 4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन 5वें दिन मैं फिर वहीं पे पहुंच गया, वही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि आपने कंसिस्टेंटली कितनी देर किया। लीनियर नहीं है हीलिंग, आपको वो सब दिखाएगी जो शायद आप आप शैडो साइड पे लेके चल रहे थे, अब वो सामने आ रही है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे मैम ने कहा कि ईएफटी में पहले हम कंसिस्टेंसी है। एक्सेप्टेंस लेके आते हैं कि एक्सेप्ट इट, जो हुआ पहले उसको एक्सेप्ट करो, तो हीलिंग वही है। जो जैसे मैम ने कहा कि 3 सेशंस में हम आपको रियलाइज करवाएंगे, तो हीलिंग ऐसे ही होती है। एक सेशन में आपको, फॉर हेवन से, कोई भी ये ना समझे कि एक सेशन में कि हमने फ्री में कर लिया, एक सेशन हमारी हीलिंग होगी। नहीं, यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी अगर इसी को हम अगर अगर वेल्थ के साथ जोड़ें, हम शेयर मार्केट में ही चलिए इसे कनेक्ट करते हैं, चलिए सोचते हैं कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, क्या वो एक महीने में बहुत हाई पे चले जाता है? नहीं, उसमें कभी लो भी आता है, कभी एकदम से हाइक भी जाती है, फिर लो भी आता है। सेम इज योर हेल्थ। इन्वेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा आपको, बिना इन्वेस्ट किए आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। और इसीलिए हेल्थ इज वेल्थ, इसको जस्टिफाई हर किसी भी एंगल से हम करें ना, तो ये ऑलवेज जस्टिफाइएबल है, क्योंकि हेल्थ हमेशा वेल्थ से पहले आती है। वेल्थ पहले आ गई और आप इमेच्योर हैं, तो वो बहुत सारे डिजास्टर्स रिजल्ट्स भी लेके आ सकती है। तो दिस इज माय एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। मैं इसमें मुझे इस पे एक और चीज याद आई कि लाइक कि आई डू फिंगरप्रिंट एनालिसिस ऑल्सो। तो फिंगरप्रिंट से भी आपको काफी चीजें अपने बारे में मालूम पड़ती हैं। सो उस लाइक यू कैन गेट योर फिंगरप्रिंट एनालिसिस, जैसे हम ब्लड टेस्ट वैसे वैसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी आप अपना करा सकते हो, जिससे आपको अपनी पर्सनैलिटी मालूम पड़ती है, आप कैसे हो, क्या हो, एंड किस तरह की चीजें आपको करने से बेनिफिट मिलेगा। पर आपको अपने अंदर जो वीकनेस है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आप समझोगे उससे। So then you can, it becomes easier to select the directions, okay, and then you know which healing modality will also work for you well, and you can go for that. So see, आप सिर्फ उतरो अपने हेल्थ के बारे में सोचने के लिए, एंड इन्वेस्टर्स हैं डोर्स आपके विल ओपन, लिए डोर्स बैठे विल हैं। ओपन, या आप किसी भी एंगल में सोचिए, लेकिन जस्ट एक बार हेल्थ, जैसे मैम ने कहा माइंडसेट, लोग माइंडसेट को पता नहीं आजकल किस टर्म में लेते हैं, क्योंकि माइंड अगर सेट नहीं है तो आपका कुछ भी सेट नहीं है। और हेल्थ में सबसे प्रायोरिटी पे आज आज के टाइम पे माइंडसेट है। अगर वेल्थ है आपके पास लेकिन माइंडसेट नहीं है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करनी आएंगी, चाहे फिर कोई भी एरिया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर मार्केट होगी, कोई भी XYZ आप टर्म लगा लो, इफ योर माइंडसेट इज नॉट ओके, आप वो भी गवा दोगे। तो माइंड को सेट करना, ये दो चीजें हैं, तो माइंड, ये एक बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट सेट पॉइंट बोले, क्योंकि मैंने बहुत। केसेस देखे हैं लाइक पैरालिसिस के केसेस, जिसमें लाइक क्योंकि उसका सिर्फ वो माइंड सेट ही ऐसा था कि उसने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर ठीक हुआ है, एंड पैरालिसिस का पेशेंट 1 हफ्ते में उठ के ठीक होके जा रहा है।
एंड दूसरा पेशेंट उसी के बाजू में जिसको काफी टाइम लग रहा है, बिकॉज मैं बीमार हूँ, मैं नहीं ठीक सकता, पहले से इसको इतना टाइम लगेगा तो मेरे को इतना टाइम लगेगा ना, लेकिन दूसरे ने ठान लिया था कि नहीं मुझे ठीक होना है, like so automatically his body was started supporting him, and in 1 week he was discharged with walking. So I have तो seen कितना these अच्छा, cases also happening. कितना ब्यूटीफुल मैम आपने कहा कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। हम वेल्थ को तो समझ लेते हैं कि हम 1 से 4 कर लेंगे, शेयर मार्केट में कर लेंगे, म्यूचुअल फंड में कर लेंगे, लेकिन कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया आपने कि अगर आप पॉजिटिव थॉट लोगे तो आपकी बॉडी उसको मल्टीप्लाई करती है। जहां महीने लग रहे हैं वहां आप वीक में Yeah, ठीक होके that's जा रहे हैं। true. तो कितना ब्यूटीफुल हो गया ये। अभी एक और चीज भी है, हीलिंग की बहुत मोडेलिटीज आ गई है, रेकी आ गई है, ईएफटी आ गई है, या न्यूमरोलॉजिकली हम उनको रिचुअल्स बताते हैं या हाँ, वास्तु से टिप्स देते हैं। चीज ये है, मैं आपके पास आई, ज्योति जी आई हैव दिस प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी समथिंग, आई एम वेरी फ्रेंडली विद यू, ले लिया, कर दिया, इफेक्ट नहीं आया। आप ये बताओ, डॉक्टर के पास गए, आपको बड़ी सीवियर सिकनेस है, कोई डिजीज है, आप उसमें डिसिप्लिन लेके गुजारा कर लोगे? You have to go and take the proper treatment and you have to pay for it. You have to pay for it. वहां पर वेल्थ दो, थोड़ी सी वेल्थ दो तो हेल्थ आएगी ना। सेम गोज फॉर दिस हीलिंग ऑल्सो। सेशंस ले रहे हो, पे देम विद अ हैप्पी हार्ट। ये मत सोचो अरे यार नुकसान हो रहा है, मैंने इतना दे दिया, मेरे को नहीं आया। और उसको पॉजिटिविटी लेके दो कि मेरे को हीलिंग मिल रही है, आई एम रिसीविंग इट। सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये भी है कि हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, अरे यार मैंने 2 घंटे का सेशन ले लिया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। ओपन माइंड से जाओ, कोई आइडिया दे रहे हैं उसको अपनी लाइफ में लाओ। आपको थोड़ा सा भी करोगे ना, एफर्ट दोनों साइड से होनी चाहिए। इट्स नॉट वन वे स्ट्रीट। नोबडी कैन क्योर यू इफ यू आर मेंटली blocked to take the advantage of that thing. You have to open yourself, open to receiving, and say कि yes, it is affecting me, I am ready to change. सबसे बड़ी चीज है love yourself. Don't expect others yes, to love yourself. Accept yourself the way you are. This is very big dialogue in the EFT. We always say, even though there are so many problems, but I still love myself and accept myself. मैंने बहुत ब्लंडर किए हैं लाइफ में, आई मेड द रॉन्ग डिसीजन, आई एक्सेप्ट इट, बट आई स्टिल लव माई सेल्फ। सारी दुनिया का ब्लेम अपने ऊपर ले लेना, वो मैंने किया था, उसका गलत हो गया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, उसका ठीक हो गया, उसने ठीक किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू लव योर सेल्फ, फर्स्ट यू लव। हम सबका भला करते हैं। वी एवर सेड थैंक्स टू अवर हार्ट, जो बेचारा 24 आवर्स बिना उसके चलता है। इतना स्ट्रेस डालते हैं, इतनी मुसीबतें उस पर डालते हैं, जब वो बेचारा लड़खड़ाता है, फिर स्टंट पड़ते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। फिर प्रॉब्लम, फिर डाइट्स में कंट्रोल करते हैं, फिर समझते हैं इसकी वैल्यू क्या हाँ है। हाँ, पहले चीनी सारी उम्र खा ली, अभी चीनी बंद होगी तब एक एक दाने के लिए तरसते हैं। दैट इज माय सिचुएशन। हाँ, तो हम एनर्जी एक्सरसाइजेस भी मैम, हमारी जो एनर्जी एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली वो ऑर्गन्स पे ही वर्क करती हैं। इट हेल्प्स यू टू वर्क विद योर ऑर्गन्स लाइक किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, आपका जैसे ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम इन्हीं पे वर्क करवाते हैं थ्रू योर ओन एनर्जीज। और आपको सिखाते हैं कि ऐसे वर्क करो सो दैट आप उसको इंटीग्रेट कर सको 10 मिनट्स इन डेली रूटीन। और चक्रा आपने हीलिंग बहुत अच्छी बात कही। जी मैम। चक्रा हीलिंग करवाते हैं यार, वो चक्रा जी। हीलिंग करते करते चल रहा है कुछ और, देखना मेरी सब्जी तो नहीं जल गई, नहीं। फोकस, स्टे वेयर यू आर, फोकस बी प्रेजेंट एट दैट प्लेस। एट माइंड मोमेंट, को एट द पहले मोमेंट। कूल एंड काम करके स्टे एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में नहीं, हम चाहे तो पास्ट में, चाहे हम फ्यूचर में, बोथ वी कैन नॉट कंट्रोल। पास्ट तो निकल गया, करोड़ों का नुकसान हुआ, जो हुआ सो हुआ, रिश्ते खत्म हो गए, एटलीस्ट जो है उसको तो संभालो। फ्यूचर में तो क्या रहेगा, जो होगा क्या पता, कल को दुनिया भी है कि नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि हमें एक तो हमारे लिए एक मी टाइम जरूरी रखना ही है। यस, वो अपना टाइम आप खुद ही डिसाइड करो, लेकिन एक वो मी टाइम रखो और उस मी टाइम में फुल्ली प्रेजेंट रहो। Yes. Very true. वो मी टाइम में आप एक प्रेजेंट रहो उसमें, वो बिकॉज दैट इज व्हाट इज योर सेल्फ लव। यस, वो अपना सेल्फ लव का मी टाइम आप रखो, ठीक है। उसके लिए एक डेली रूटीन भी सेट करो, एंड दैट इज व्हाट लाइक गिव दैट। एंड दूसरा एक होता है फैमिली टाइम, वो भी आपको रखना ही है।
एक कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए जो फैमिली को गेट टुगेदर करे। तो एक फैमिली टाइम होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उधर आप करते हो, शेयर करते हो। अगर आपको, मैं कई बार फैमिलीज में देखते हैं कि वो ओपनली नहीं शेयर कर पाते एक दूसरे, तो कोई चीज इन्वॉल्व करो उसमें, या तो चलो सबका फेवरेट डिश इन्वॉल्व करो कि खाने के टाइम पर वो फेवरेट डिश आ जाए, या कोई गेम इन्वॉल्व करो। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया विच आई सजेस्ट टू मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, कि कोई ना कोई एक गेम, आजकल इतने अच्छे अच्छे गेम्स आते हैं, लाइक कि एक दूसरे की क्वालिटी समझ में आती है, दिखती है वो, एंड देन फिर वो बहस भी होती है, बातें भी होती है, तो उसमें काफी चीजें बाहर आती हैं। लाइक मैंने 2-3 गेम्स खेले, लाइक जब मोनोपोली खेलते हैं तो समझ में आता है इसका दिमाग तो बहुत बढ़िया चलता है इस चीज में, इसने इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया, ये कर दिया, हम लोग तो सोच रहे थे इसको नॉलेज ही नहीं है ऐसा। फिर दूसरा एक गेम था, लाइक कि जिसमें अलग अलग टाइप के सेट्स हैं कार्ड्स के, तो उसमें से एक कार्ड निकालो और फिर लाइक कि यू टेल, उस कार्ड में अलग अलग चीजें, लाइक हाउ योर डे वाज, या आप कोई भी एक फैमिली मेंबर के बारे में उसकी अच्छाई बताओ, या उसकी कौन सी चीज आपको पसंद नहीं है, या आज आपने दिन में कौन सी चीज ये की, या 3 महीने पहले कौन सी चीज आपको अच्छी लगी थी या बुरी लगी थी, या कोई इंसिडेंट बताओ आप, या कोई एक्टिविटी के बारे में बताओ। ऐसे अलग अलग चीजें हैं, तो वो कितनी चीजें बाहर आती हैं फैमिली मेंबर्स की जो उन्होंने एक दूसरे को बताई भी नहीं है। लेकिन बच्चा स्कूल में क्या गुजर रहा था वो माँ को नहीं मालूम था, वो एक्टिविटी के दौरान उसने बताया, और माँ की अब कुछ बातें थी जो बच्चों को नहीं समझ में आती थी, वो समझ में आई, एंड उन लोग इतने खुश थे गेम खेलने के बाद, एंड दे मेड इट अ रूटीन कि हम लोग महीने में एक बार ये गेम खेलने के लिए बैठेंगे। सो ये चीजें हैं जो स्ट्रेस भी रिलैक्स करती, रिलीज करती, हम एक दूसरे को जानते भी हैं ताकि एक दूसरे को हेल्प कर सके। तो कुछ ये छोटी छोटी चीजें जब हम इन्वॉल्व करते हैं ना, एक हॉबी रखो, सेल्फ लव के लिए टाइम लो, कुछ अपने फिजिकल और मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम दो, इन तीनों सबको मर्ज भी आप कर सकते हो कि एक साथ फैमिली टाइम लेके सब लोग ये करो, डिपेंड अपॉन हाउ योर फैमिली इज। बट इस तरह से आप अपना डिवीजन करके अपनी लाइफ को काफी अच्छा बना सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे, उनको तो आना ही है, लेकिन अच्छाइयों को भी आना है, उनको भी जाना है, तो व्हाई नॉट टेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। जैसे प्रॉब्लम ज्वाइंटली फेस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसके हाँ सोल्यूशन इमीडिएटली आने शुरू हो जाएंगे। दे यूज्ड टू से ना कि दोज हु फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टे टुगेदर, नो मोबाइल्स ऑन द डाइनिंग टेबल। अभी क्या टेबल तो यहाँ पर चल रहा है खाना, इधर से रीलें चल रही है, मत पेरेंट्स को चाहिए कि बेटा 30 मिनट्स गिव इट टू योर फैमिली। पेरेंट्स शुड आल्सो डू दैट ना। अब जब That is the main thing. खाने के बीच में फोन आ गया, लेट इट रिंग यार, कोई एंड ऑफ द वर्ड नहीं। ये थोड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर डिक्लेयर कर देनी अगर आपने नहीं उठाया, लेट इट गो। 30 मिनट्स जो भी है, बच्चों को खाने में इन्वॉल्व करो कि वो डे टू डे एक्टिविटी, संडे को डस्टिंग पे लगाओ, साथ में कुछ भी करो, साथ में गप्पे मारो। वो चीजें वो जो खत्म हो चुकी है वो वापस लानी पड़ेंगी, जैसे हम वापस अपनी रूट्स की ओर जा रहे हैं ना। हाँ, by doing the puja and by doing this, this is not new things, this is old. It's not कि we invented these things, this is we are connecting already back to existing. it, like we're grounding ourselves again. We are getting into this, otherwise कि हमें क्या पता था कि ये क्या होता है यार, मेरे को मंत्र नहीं आते थे, I could not use say the one मंत्र properly। अभी खड़े खड़े 5 माला करवा लो, I can do it। क्यों? क्योंकि मेरे को उस टाइम लगा कि मुझे सीखना है, मेरे को आना है सॉरी, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं किया तो नहीं किया। भगवान जी तो हमेशा साथ में ही है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। थोड़ा सा टाइम उनको भी दे दो, थोड़ा सा पेरेंट्स को दे दो, यही चीज है लाइफ की, और क्या। बट ये चीजें पेरेंट्स को भी करनी है, लाइक ऐसा हो जाता है कि हम बच्चों को कोई चीज मना करते हैं लेकिन वो पेरेंट्स करते हैं, देन फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं, उनको भी बोलते हैं अरे बच्चा उल्टा बोल रहा है कि नहीं हमें, आप भी तो करते हो, आप नहीं करते हो, हमको बोल रहे हैं। पेरेंट्स हैव टू बी, they don't say also, but they feel it, तो इसलिए you also have to follow that discipline when you're telling to the child. We have to be open for the criticism। बच्चे आजकल स्मार्ट है, वो उल्लू नहीं है पुराने जमाने के कि पेरेंट्स को कुछ बोलना नहीं है। यहाँ गलत होते हैं बच्चे करेक्ट करते हैं, वी हैव टू बी ओपन टू टेक दैट एंड इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ अगर इट्स पॉसिबल। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हाँ जी आप निकल जाओ घर से, वो नहीं निकलना, बट हाँ कुछ अच्छा आपके लिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ, तो डू दैट। सो हेल्थ इज वेल्थ इन एवरी वे। रिलेशनशिप भी तभी मजबूत होंगे अगर हेल्थी अच्छे हो और वेल्थ भी आपके पास, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। they are both are equally important, but yes,
अगर एक तराजू में उनको तोला जाए तो वेल्थ का थोड़ा हमेशा ज्यादा ही रहेगा। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हेल्थ और वेल्थ की अगर स्पेलिंग्स देखें तो सिर्फ एक एच और डब्ल्यू का ही फर्क है, बस सिर्फ फर्स्ट लेटर का ही फर्क है। और हेल्थ शुरू होती भी एच से है और खत्म भी एच से होती है, और पर वेल्थ डब्ल्यू से शुरू होकर एच पे खत्म होती है। वेल्थ खत्म आपकी हेल्थ पे ही जाकर होगी, चाहे कुछ भी कर लो, ये बाय तो गॉड see, हमें और ऐसे एच वर्ड्स का मिलेंगे। एच है क्या? बैलेंस। बैलेंस, एच और इज अगर एच बैलेंस। को आप बैलेंस करते हो तो डब्ल्यू का तो वेल्थ डब्ल्यू जमा होते रहेगा। जमा, और डब्ल्यू डब्ल्यू होता का क्या ऐसा है, शेप दो है ना, तो वो दो जमा करेगा, वेल्थ को हाँ, जमा करेगा। दो वी को कनेक्ट करते हैं, मतलब आपकी डबल विक्ट्री है। अगर डबल विक्ट्री, न्यूमरोलॉजी के बिल्कुल। सेंस में भी देखें तो डबल विक्ट्री है अगर आपकी हेल्थ बैलेंस हो जाए। तो अगर हम कनेक्ट करें ऐसी चीजें तो बहुत सारी, वही जैसे मैंने कहा कि डीप में जाए तो इसमें बहुत कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ, किसी भी एंगल से देख लो, कोई भी साइड देख लो। अब अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो क्यों ना डिस्कस करें कि आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, हम्म, तो बच्चों पे कितना स्ट्रेस चल रहा है। इनफैक्ट पेरेंट्स जो हैं उनको इतना ज्यादा ऑक्युपाई कर रहे हैं स्टडीज के साथ कि उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। मतलब इट्स नॉट कि अनएजुकेटेड, इवन एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो इतना प्रेशर देते हैं अपने किड्स पे कि यू हैव टू पास इट आउट। 18-18 घंटे उनको रेगुलर बैठ के सिटिंग दे रहे हैं, और वहीं पे उनको खाने को मिल रहा है, वहीं पे सब कुछ उसी जगह पे हो करो, यू आर नॉट सपोज टू मूव। आई मीन ऐसे डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट स्ट्रेस ओनली, दे विल गेट स्ट्रेस्ड। हाँ, वो एग्जाम में तो पास हो जाएंगे, शायद अच्छे नंबर में पास हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हेल्थ जो है वो लूज होता जाएगा, वो माइनस चले जाएंगे, उनका ऑरा वीक होगा, फिर वही सारी लैक ऑफ फोकस और रिजिलियंस पावर नहीं रहेगी। ये सारी चीजें एक के बाद एक वो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। So we have to understand, being a parent also, or being a enlightened or conscious member of the society also, we have to keep this in mind। हमें इस बारे में बताते भी रहना चाहिए, रिमाइंड भी करवाना चाहिए। अंजू जी तो टीचर हैं, आप भी ये बहुत फील करते होंगे जब आप डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो कि ये चीज बहुत बाहर आती है। आपको शेयर कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से, बच्चों की किसी स्टोरी से, कि जहां पे आपने, जैसे आपने पहले शेयर किया कि उस बच्चे को बैठे बैठे एग्जाम में पैनिक अटैक आ गया। हमारे टाइम पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते भी नहीं थे, आजकल अटैक वर्ड बच्चों के साथ अटैच हो गया। मतलब अटैक हमारे लिए एक वॉर जैसा सिचुएशन होता था, हम सुनते थे तो। और आजकल तो एग्जाम्स के टाइम, ड्यूरिंग एग्जाम्स ऐसा सब हो रहा है कि बच्चे बाद में पेरेंट्स को सुनते भी नहीं है। ऐसा ऐसा माहौल घर में बन जाता है कि एक टाइम के बाद बच्चे पेरेंट्स को सुनना भी बंद कर देते हैं। दे फील लाइक कि हम ही सब कुछ हैं, वी नो एवरीथिंग, आपको कुछ नहीं पता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है वो शुरुआत घर से ही होते हैं, बड़ों की आदतों से ही होते हैं। और हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि घर में, बीइंग अ एल्डर वन इन द हाउस और होम, आप कुछ ऐसी रूटीन्स शुरू करो जिसे देखकर बच्चा भी 6 मंथ्स 1 ईयर में अट्रैक्ट होता ही होता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट में आ जाती है चीज, आपके घर के माहौल में होती है, तो बच्चा अडेप्ट करेगा। लेकिन गिव दैट टाइम, उनको वो स्पेस दो। ये नहीं कि आज आपने बोल दिया और 2 दिन में वो उसको फॉलो करने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि अगेन वो स्ट्रेस आ जाएगा फिर से कि मॉम ने ये बोल दिया, अब ये करना ही पड़ेगा, मम्मी मेडिटेशन करती है, मम्मी हीलिंग करती है, या पापा कर रहे हैं तो आई हैव टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू इट। ऐसा नहीं, लेकिन यस, अब जैसा लाइफस्टाइल है हमारा, हमें इन चीजों को अपनाना बहुत जरूरी होता जा रहा है। कीपिंग इन माइंड कि हमारे हेल्थ के इश्यूज कैसे बढ़ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो गया या किसी भी स्ट्रेस को रिलेटेड, चाहे वेल्थ से रिलेटेड है चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, हमें ये अब बाइफरकेट करना ही पड़ेगा कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी किसकी है, हेल्थ की है या वेल्थ की है। तो एग्जाम से मतलब समझो कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल कैसा है, उनका क्या है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपनी एक स्टाइल रहती है लर्निंग की, जो फिंगरप्रिंट से भी हम जान सकते हैं। तो वो जब समझते तो हमें मालूम है कि ठीक है, उसे एक स्पेस चाहिए वहां बैठ के पढ़ने के लिए, तो उसे वो स्पेस दीजिए। या उसको मूवमेंट चाहिए, वो एक इतनी देर नहीं बैठ के पढ़ सकता, लेकिन आप बोलोगे नहीं तेरे को 3 घंटे बैठना ही है पढ़ने, तो उसके भेजे में कुछ नहीं जाने वाला। उसको आज चलो आधा घंटा बैठने दो, एक राउंड मार के आने दो, फिर बैठने दो, उस पर भड़को मत। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर स्टाइल, या उसको ग्रुप में ही अगर भेजे में जाता है, उससे वो समझ रहा है ग्रुप में तो इंश्योर करो कि आप या उसके फ्रेंड्स के साथ में बैठ के वो पढ़ाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वो भी आप समझिए उसका स्टाइल कैसा है, ताकि
फिर वो स्ट्रेस कम हो जाता है, बच्चा वो पकड़ लेता है, जो उसको पढ़ना है वो कर पाता है, तो उससे भी काफी चीजों से फर्क पड़ता है। स्टडी में भी ब्रेक्स चाहिए, स्टडी में भी ब्रेक्स चाहिए। मैं तो अपनी डॉटर को बोलती हूँ, अच्छी स्टडी, मेडिसिन में वैसे ही पागलों की तरह पढ़ना पड़ता है। आई ऑलवेज टेल हर टेक ब्रेक, ड्रॉ, शी लव्स टू ड्रॉ, पेंटिंग कर ले 1 घंटा बैठ के, चॉकलेट खा ले। इससे क्या है, चॉकलेट से थोड़ा सा हैप्पी सा एनर्जी आ जाती है, हाँ, उसके बाद आप फुल एनर्जी से वापस पढ़ते हो। नहीं तो वो कंटिन्यूसली डे एंड नाइट पढ़ते हो तो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। यस, आप पैरेट की तरह रट्टे लगा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू कोई अंडरस्टैंड। बेनिफिट फोटो कॉपी नहीं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इंडिया में फोटो कॉपीज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअली। 98% मार्क्स तो आ गए आपके। नॉलेज क्या है? आपको ये नहीं पता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम क्या है? पूछ लो आज बच्चों से। आई एम सॉरी बट अंजू जी, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि बैंक में जाके हमने फॉर्म कैसे फिल करना है। एवरीथिंग इज रिटन। आप अपने बच्चों को क्लास में पूछो, लेके जाओ कि बच्चों भर के बताओ, नहीं पता। अकाउंट कैसे खोलना No. नहीं पता। Same दिस इज happened द yesterday only in 10th class. They were not even aware how to fill the blocks. Those blocks which were related to his name only. The full Dipanshu name was filled in one line only. ओ, दिस इज द प्रैक्टिस अवेयरनेस, मिसिंग। Awareness. अवेयरनेस नहीं है। And Dipanshu will get 99 marks and go to some very high-fi in college. कॉलेज, हाँ, यस। so और बेसिक Sometimes नॉलेज, एक even कॉमन parents सेंस say वाला कि मिसिंग रहता है। छोटे मोटे एग्जाम्स में भी पेरेंट्स क्या बॉदरेंस रखते हैं कि 30 में से बच्चे के 26 आए, कितने कम नंबर हैं, 4 नंबर कहाँ गए। अरे उसके लिए अप्रिशिएट कर दो जो बच्चा 26 ले आया। यू आर फोकसिंग ऑन दोज 4 पॉइंट्स। जो बच्चा 26 है, आप लोग क्या अपने टाइम में फुल मार्क्स लाते थे जो आज इतना प्रेशर डाल 10 रहे हो लाते बच्चों के होंगे, ऊपर? 10 लाते जब होंगे। आप एक मिक्स बैग वाले क्वेश्चंस करते हो एक ही टाइम में, इट हैपन्स, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स ऑफ योर चिल्ड्रन? उनको उन मार्क्स के लिए अप्रिशिएट करना शुरू करो जो उनके आए हुए नंबर हैं। उनके लिए वही वही क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, फुल नहीं लाया, उसके जितने नहीं लाया। सो प्लीज डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन। सबसे बड़ा हाँ, प्लस वही पॉइंट है। गिलास, गिलास खाली ही दिखता है, भरा हाँ, हुआ तो उसको नजर ही बस नहीं यही आएगा। दिखता है। अब हाँ। फिर नहीं देखता कि वही। आधा भरा हुआ है। तो मुझे इस पे मुझे ये अंजू जी को पूछना चाहूंगी कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग में कुछ बातें होती हैं इस तरह की बच्चों को लेकर के? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स पिक दिस पॉइंट ओनली। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ, एक बच्चे के थे बहुत अच्छे मार्क्स से, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट पेरेंट्स का बिल्कुल मुंह लटका हुआ था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दीज मैनी, ये तो 28 लाया, 30 में से 28 है, 2 मार्क्स कहाँ गई? मैंने कहा बेटा आज जाओ और पार्टी करो, मम्मा की मत सुनो, मम्मा को भी ले जाओ पार्टी में, पापा को भी पार्टी में ले जाओ, फील द हैप्पीनेस दैट यू गॉट 28। मम्मा को दे दो वही पेपर अगर मम्मा फुल ला दे तो। ये बहुत बिल्कुल सही। सेम क्वेश्चंस अगर पेरेंट्स का पीछे ना बड़ा अंडा लेके आएंगे, उनको कुछ नहीं पता चलता कि क्या कुछ हुआ। नहीं पता होगा। हाँ, मैंने देखा टीचर्स में जब जाते थे पेरेंट्स मीट में, आप तो लिपि जी अभी ही जाते होंगे, न्यू एक्सपीरियंस होगा मे बी। थिंग इज के पेरेंट्स वहां पर बच्चे का पूरा पेपर खोल के बैठ जाते हैं कि हाँ, ये ऐसा क्यों, वैसे भी। यार टीचर बेचारी वैसे ही पागल हो चुकी होती है, इतने 39 बच्चों के पेरेंट्स से मिलना है। व्हेन आई यूज्ड टू गो, मेरा 3 क्वेश्चन होता था, एनी कंप्लेंट्स? नो, yeah, एवरीथिंग I ओके also ओके, used to, हैप्पी दिवाली टीचर, हैप्पी hardly न्यू ईयर 5 दिवाली, minutes. बस छुट्टी। 3 मिनट्स में आई यूज्ड टू बी आउट। टीचर बोलते थे कि यार ये ठीक है। आजकल तो आई एक थिंक पेरेंट टीचर्स मीटिंग में ये चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि सिर्फ हम बच्चों के मार्क्स ना डिस्कस करें, दूसरी चीजें डिस्कस करें कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है क्लास में, मतलब क्या वो जो बोल रहे हैं ना, जो हम लोग हेल्थ की टॉपिक पे बात करें, उन पे भी थोड़ी डिस्कशन हो कि how he is interacting with other students, या how सो he is performing in the games, और बच्चों के साथ सोशल कैसा है बच्चा। को करिकुलर, हाँ, हाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे जा रहे हैं, टीम बिल्डअप हो रही है क्लास में, ये इनकी फ्रेंड सर्कल है या नहीं है, कि क्लास में अकेला ही बैठा रहता है, चुप रहता है। क्योंकि ये वो तो कंप्लेंट्स मैंने बहुत सुनी है कि इसको, बच्चे के मार्क्स तो 30 में से 28 या 29 आ रहे हैं, लेकिन उसको इतना नहीं पता कि साथ अगर मेरा कोई फ्रेंड बैठा है तो उससे बात कैसे करनी है, उसको शेयरिंग करनी आती है कि नहीं आती, कोई हेल्प करना आता है कि नहीं आता है, इन चीज में वो वीक है। कॉपीज में बिल्कुल रेड एंड स्टार्स मिल रहे हैं एंड स्माइलीज मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे उनको जीरो है, उनको दे डोंट नो हाउ टू इवन टॉक एंड कम्युनिकेट द थिंग्स इन अ बेटर वे। सो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं इन द पार्ट ऑफ योर इमोशनल हेल्थ।
अभी से भी अगर कनेक्ट करे तो ये भी पार्ट ऑफ योर हमारे मेंटल टाइम पे सेटअप होता एंड था, योर लाइक इमोशनल स्कूल अरे में बैठी ही होती थी कि किसी का कुछ हो रहा है तो क्या हुआ, किसी के घर में बच्चे के कुछ हुआ तो सारे बच्चे इकट्ठे होके उसकी हेल्प करते थे। जब ये बच्चे जो बिल्कुल फोकस ऑन स्टडी कर रहे हैं, व्हेन दे ग्रो अप, गो इनटू द सोसाइटी, दे विल नॉट हैव एम्पैथी, दे विल नॉट हैव द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अदर्स, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल कर करके लाए हैं। तो उनका डेली उनका रूटीन जो रहेगा ना, वो एक फाइटिंग स्किल की है उन्होंने, कि आई हैव टू फाइट टू गेट इट, आई हैव टू फाइट टू gain the promotions, I have to push everybody behind and go ahead. So उनकी हेल्थ क्या रहेगी, ऑलवेज ऑन द स्ट्रेस। उन बच्चों को सबसे ऑलवेज ज्यादा माइग्रेन होगा, उन बच्चों को सबसे ज्यादा हेडेक्स होंगे, उन बच्चों को हेडेक्स सबसे शोल्डर ज्यादा पेन फ्रोजन शोल्डर्स, रिलेशनशिप इश्यूज एंड सोशल मीडिया में सिर्फ फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया रहेंगे, रियल फ्रेंड्स जो बैठ के चाय की चुस्कियां लगाते हैं वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप वो कम हो फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने बताया कि हमारी काफी चीजें, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा बिहेवियर पैटर्न्स है, वो हमारे स्पेसिफिक एरियाज के बाद में फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड होते हैं। कनेक्ट करते हैं कि दे हमारे आर ये थॉट प्रोसेस इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हमें ये ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हमारे ये बॉडी पार्ट में या बॉडी के ये एलिमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हर एक चीज लाइक या तो पेन है, या तो गैस, या एसिडिटी, या लो हेमोग्लोबिन, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड हैं। तो हमें उनपे भी वर्क करना पड़ता है, लाइक वी हैव टू वर्क ऑन द होल। यस तो किसी और तो को कुछ और ऐड करना है या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Let the आई थिंक audience ask the questions. We'll make sure that we answer for them. They can connect with us in any way. They can connect. They can connect individually, or they can connect through Healing Touch. They can write the comments. We'll ensure that they get their answer. I request everybody, please come forward and discuss your problems. Don't keep it buried in your heart. You have people. We are there for you. It's not like that ki we are just giving the lectures or discussing the topics over there. We are there to help you. Come out of your comfort zone. See what is lying beyond that. Life is beautiful. Don't let it pass by. You will get everything. Not us only, there are many people, but find who is genuine. Then don't go for 199 and find the solutions. You will not find, यस you'll get more confused. Go for one, go for longer period, go for the best. Because you are the best, get the best. That is, यस I think you need these days. डेफिनेटली Great and this word, should reach to Sadhvi. every home that you are the best and get the best. Attach for a longer period. Just don't think about shorter terms and ki invest short and little investment and your life will work wonders. No, you have to understand everything comes with a proper faith, with proper energy and time. Sorry. So I would तो really आई थिंक ये कंसेप्ट तो बहुत डीप है, हम इस पे जितना चर्चा करें उतना कम है, कम लेकिन है इस टाइम पे हमें एक्चुअली। अपने एज अ हीलर्स तो हम ऑडियंस बहुत को कुछ बोल सकते हैं। हम एक्चुअली कुछ और टॉपिक प्लान कर रहे थे लेने का, लेकिन हम जब डिस्कशन किया हमें लगा कि नहीं, इस टॉपिक को हमें इम्पोर्टेंस देना है। सब जानते हैं, ठीक है, हेल्थ के बारे में सोचना है, करना है, सुनते हैं, खुद भी जानते हैं, सुनते भी हैं, बट एफर्ट कहीं ना कहीं लैक करता है। तो जो वो पुश चाहिए उस एफर्ट के लिए, उसके लिए हम हैं। एंड हम आपको कर रहे हैं, हमारे हर तरह के सेशंस हैं, पर्सनल है, ग्रुप सेशंस हैं, वैरायटी ऑफ सेशंस हैं। एंड अंजू जी, हम बच्चों के लिए भी प्लान कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए भी सेशंस हैं हमारे पास अलग अलग, पेरेंट्स के लिए, हर एज ग्रुप के लिए हमारे पास सेशंस हैं अलग अलग टाइप के। तो कौन सी एरियाज में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उस पर कैसा वर्क करना है, आप हमें बोल सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हम उस पर आपको हेल्प कर सकते हैं। सो बी ओपन टू इट। एंड क्या आप बोलना चाहते हैं? Well, like as you said, students की बात हो रही है. We are putting the pressure कि हाँ भी बच्चों, आपने 12th 10th कर ली, now you have to take the science or you have to take the medical और दूसरा कौन से सब्जेक्ट लेने. Bring your children to the proper counselor. Ask them what is good for them. Go to any numerologist. You with their numbers, what is the best profession for them?
Don't force them. Please don't force them. You force your kids to डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हमें पता भी नहीं है. बहुत फील्ड्स हैं. डिस्कस विद द पीपल दोज हु आर एक्सपर्ट इन दिस. बच्चों के लिए सिर्फ ये 10-15 प्रोफेशन नहीं होते, क्योंकि आप उनको फोर्स करेंगे वो सारी लाइफ वर्क करेंगे. दे विल नॉट लव इट. इफ यू डू व्हाट यू लव, you will not work, you will enjoy it, you will not be बहुत under pressure. अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए. हमारे टाइम पे तो बस 3 ही चीज था, लाइक इधर जाओ या तो उधर जाओ, ये मार्क्स लाए तो इधर जाओ, लाइक यू नो ऐसे होता था. बट नाउ यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड, सो मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. लाइक यू नो है हमारे पास, लाइक अपॉर्चुनिटीज है, सोशल मीडिया है, यू नो यू कैन इजीली कनेक्ट. अभी हम भी देखो, हम अलग अलग एरिया से आए हुए हैं पर हम कनेक्ट हो रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, start it from today itself. As and when you're seeing this video, start connecting to yourself, and any help needed from our side, we are there to help you. So So thank we you all are everyone. waiting for Thank your you. comments. And if you need any help, do let us know. We through Healing Touch Wood World, or any one of us, we can easily available through this media only, Healing Touch World. And you just mention the name, and we are ready to reply your queries. Thanks a lot. Thanks everyone. Thank Lots you. of Thank love. you everyone. Love Thank yourself. you. To the end of today's enriching discussion, one message stands very clear. True wealth is not counted in currency, but in vitality, peace of mind, and the ability to live life fully. Health empowers us to dream, to work, to serve, and to enjoy life's blessings. It is a foundation upon which all success stands. Without it, even the greatest achievements lose their meaning. So let us not wait for illness to remind us of its value. Instead, let us consciously choose healthier habits, manage stress wisely, nurture our mental well-being, and prioritize our self-care. Thank you everyone for connecting on this topic. So there's more to come, many more such topics which are important part of our life. So if there's any topic which you want us to take it for the discussions, please write it in comments and we will look into it further. Thank you.